सो हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज जावा के एक और लेक्चर और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जावा का आज का टॉपिक। व्हाट इज इट? इट इज पैकेज इनपुट क्लासेस। ये है आज का अपना जावा का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज पैकेज? वी हैव स्टार्टेड सो मेनी टाइम्स that one of the main features of OOPS it is ability to use the already created a code and another way of achieving it using packages, right? Then packages are Java way of grouping a variety of classes up together and or interfaces together. These are act as contents for classes. By organizing our classes into the packages we achieve the following benefits. What are the benefits? The classes content in the packages of other program can be easily reused. बार बार यूज कर सकते हैं. That was the first one. Second one, in packages the classes can be uniquely compared with the classes in other packages. That was two classes or two different packages with same name, right? दोनों का सेम नेम होना चाहिए और उनका अंदर का जितना चीज़ है उन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं थ्रू पैकेजेस, अगर हम पैकेजेस को यूज़ कर रहे हैं. द थर्ड वन इज पैकेजेस प्रोवाइड्स द वे ऑफ हाइड क्लासेस थॉस preventing other programs packages from the accessing classes that are made of internal uses only, right? तो पैकेजेस क्या करता है, हमको हाइड करने को मतलब क्लासेस को हाइड करने का पावर देता है. So after that, packages are divided into two types. First one is Java API packages. The second one is Java custom packages. What is Java API packages? So it provides a large number of classes grouped together into the different packages close to the functionality, right? वो हमको क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, राइट, प्रोवाइड करता है. ग्रुप मतलब ग्रुप होके एक ही साथ प्रोवाइड करता है वो डिफरेंट पैकेजेस को फंक्शनली अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली. सो वेट, जावा उसके मतलब उसका दिस आर द कॉन्स्टेंट्स, राइट? उसका पैकेजेस का नेम है. जावा का जितने इतने पैकेजेस हैं उसके अंदर डिवाइड है. जैसे होता है व्हाट इज पैकेजेस. पैकेजेस इन डिवाइड इन टू टाइप्स. देन आफ्टर दैट, after two packages are dividing in sub, they have some sub packages, right? So like that, Java API packages have some sub packages as long, util, IO, out, net, util, right? Java long. First one is language support classes automatically imported include classes for primitive strings, math functions, thread and expectations, right? After that, the Java util. It includes the classes such as the vectors, the tables, random numbers of .ctc. See, these are the packages name and these are the constant that was used in program, right? Java IO, the what is the work? Input output support is the classes. Then Java outlet, कौन हेडलाइन है Java util, I guess. This was the out, Java out. Sorry. Now, what is the work? Set of classes of the implementing words of includes classes for windows and buttons, list, menu, and so on. That is the work of the this package. Then after that, JavaNet. The work of the JavaNet is classes for the networking include the classes for the communicating with the local computers as well as with the internet servers. Then Java Alphabet, the classes for the creating and implementing alphabets. Alphabets को user. These are the uses of packages and these are the packages that are used in the program, right? इसको प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे. इन पैकेजेस को इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे और ये उनका फंक्शन है, किस किस चीज़ में यूज होता है, उनका काम क्या है और कौन से कॉन्स्टेंट इसके अंदर काम करेगा. ओके, क्रिएटिंग पैकेजेस. जावा इज ऑल्सो sorry, Java also allows coder to create packages also for coders need to benefit the packages in Java. We use the keywords of package, right? पैकेज को क्यों यूज करते हैं आप लोग समझ गए होंगे. why we use the keyword packages in the program, right? Then the note, the package name must have the identifier started with the lower case of should be unique. It
has to be unique, right? Then the making packages name is initialized with the lowercase. This makes it easy for the users and the distinguish its classes name, right? Package name को initialize किया जाता है on the lower classes. This makes easy, right, for users of distinguish of the team classes name. Then after that the example double y is the java dot long dot math dot sort. The next here is the package name. यहाँ पे as for first package name, then the class name, right? As for the second, as for our second point, then coming back, coming to third point, यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे as for the third point, as for the third point यहाँ पे use हुआ है method name as we use. Then the third, after that this the statement are used in the fully qualified the name methods are the invoke the method of math dot classes. We must first declare the packages using the package keyword followed by the package name. This must have the first statement in Java source file. अभी यहाँ पे क्या होता है डेफिनेशन कहाँ पे पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा पैकेजेस का जैसे हमारा होता है ना फंक्शन हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं ऊपर क्लासेस को डिफाइन करते हैं फिर फंक्शन लिखते हैं उसके बाद एग्जीक्यूट होता है लाइक दिस पैकेज का भी वैसा ही है कि डिक्लेयर करेंगे फिर फंक्शन लिखे उसके बाद काम होगा राइट द नोट व्हेन वी सिक्योर फाइल द कंपेयर जावा वी विल क्रिएट द क्लासेस ऑफ फाइल्स एंड स्टोर इट इनटू द सेम directory. This classes files are must have located in the directory that has the same name as the packages and the directory should have subdirectors okay of the directory like this. मैंने अभी क्या बोला कि पैकेजेस के नीचे कैसे होता है सब पैकेजेस होता है उसके नीचे और होता है उसका सब कोऑर्डिनेट और भी निकलेंगे नीचे ब्रांचेस निकलेंगे लाइक दिस जैसे पैकेजेस को होता है वैसे डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी होता है उसके नीचे फिर वो अपने ब्रांचेस को एलोकेट करता है वेयर द क्लासेस okay coming back to the point directory where is the classes that will be the import the package are located right. अभी पहले क्या होता है import फाइल को पहले क्या करते हैं फाइल को वहाँ पे जब प्रोग्राम लिखेंगे इसके बाद पैकेज के ऊपर करेंगे पर इस लेक्चर में नहीं इस लेक्चर में बस थ्योरी के ऊपर बात करें कि पैकेज इज ऑल अबाउट थ्योरी आफ्टर दैट इसके बाद वाले मतलब जो भी टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे हम पैकेजेस का यूज़ करेंगे लाइक व्हाट इज यूजेस ऑफ पैकेजेस in case of programs. So in this lecture हम बात करें पैकेजेस के ऊपर पर पैकेजेस का यूज़ कहाँ पे पहले हमने क्या डिक्लेयर करेंगे import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज वहाँ पे पैकेज को डिफाइन किया जाएगा वहाँ पे हम लोगों ने अगर पहले कुछ लेक्चर में आप लोग देखे होंगे तो पहले कुछ एक लेक्चर में हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि कोडिंग में भी बहुत जगह पे ऐसे हुआ होगा कि import डॉट जाई डॉट उसके बाद फाइल उसके बाद आता है public class मतलब क्लास को डिफाइन करते हैं public class like this. After that we are going to the next step about our हमारा क्लास को डिफिनेशन करने के बाद पब्लिक क्लास वॉइड वेन स्ट्रिंग वर्क्स फिर उसके बाद क्लासेस उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन देना है देंगे फिर उसके बाद आउट राइट. अगर फंक्शन कॉल करना है तो वहाँ पे ऊपर डिफाइन करेंगे फंक्शन जो भी कॉल कर रहे हैं फिर उसके बाद अपना वही सेम चीज़ कि कॉल करेंगे अपने क्लासेस को फिर स्ट्रिंग और वैसे लिखेंगे फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर अपना फंक्शन को जिसको कॉल किया है वहाँ पे जो फंक्शन कॉल करेगा क्या काम क्या करना है वहाँ पे लिख के उसको एंड अप करेंगे तो लाइक दिस वहाँ पे डिक्लेयर होगा पैकेजेस ऊपर ही. देन द creating packages is invoke the three things are defined as the classes tools is to be put in packages and declare in public. Create and sub directory under the directory where is the main sources file are stored right. जैसे हम लोग स्टोर करते हैं पहले वैल्यू को कहाँ पे फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ों को वैसे ही स्टोर करते हैं. सो हाउ इम्पोर्ट पैकेजेस कैसे इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि अभी हमने बात कर ली कि पैकेजेस एक चीज़ होता है पैकेजेस का काम क्या होता है पैकेजेस कितने मतलब पैकेजेस के नीचे सब पैकेजेस होते हैं फिर उसका भी नीचे ब्रांचेस मतलब एक के बाद एक कि पाँच छः एक के साथ पाँच छः ब्रांचेस निकले हैं तो फिर अभी बात करें कि पैकेजेस को इंपोर्ट कैसे करना है उसको अगर इंपोर्ट ही नहीं कर पाए तो प्रोग्राम रन कैसे करेगा हम अपना काम कैसे निकलवाएंगे अगर वो आया ही नहीं जगह पे राइट. So Java is an import statement that allows us the import decline packages syntax as import certain classes and import dot package dot name dot class name. As I said मैंने अभी कुछ समय पहले बोला कि वहाँ पे import फाइल पे कैसे करते हैं जावा import dot java dot util वहाँ पे क्या खत्म होता है
पर यहाँ पे वहाँ पे क्या स्पेसिफायर पे वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे डिक्लेयर करते थे ना कि इस प्रोग्राम को ऐसे रन करना है, इसी फाइल को मतलब इंपोर्ट करेंगे, इसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर, फिर इसी पे चलेगा अपना प्रोग्राम। सो लाइक दिस यहाँ पे पैकेजेस का फाइल को ऐसे ही इंपोर्ट करना है यहाँ पे। तो इम्पोर्ट पैकेज डॉट नेम ऐसे भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट वाइल द पैकेजेस, राइट। हियर टू इम्पोर्ट सर्टेन क्लासेस, टू इम्पोर्ट वाइल पैकेजेस, पैकेजेस को इम्पोर्ट करना है व्हेन सर्टेन क्लासेस है, देन दिस वाज द पैकेज as declaring. We can rewrite to the import statement using the fully qualified name import.java util dot date, right। यहाँ पे फिर आज लाइक यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे अपना इंपोर्ट करेंगे डेट यहाँ पे क्लासेस को, फिर यहाँ पे क्लासेस को यहाँ पे जो भी लिखना है उसके नीचे जितने भी है मतलब अपने फंक्शंस जो भी है, जो भी डालना है अपने को, जो काम चाहिए वो काम लिख के यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। वो सही आता है गलत आता है वो बात अलग है, पर यहाँ पे वो प्रोसेस है कि क्या करना है। जैसे अपना प्रोसेस होता था ना कि पहले में अगर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए चाहिए क्या, पहले एक पब्लिक क्लास चाहिए, अपने क्लास को वहाँ पे इंपोर्ट करना है, फिर क्लासेस को आने के बाद फिर अपने स्पेसिफायर वहाँ पे स्पेसिफाई करने की ऑब्जेक्ट को कैसे लाने की, पब्लिक क्लास वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ, उसका काम क्या होता है उसको मतलब उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो पब्लिक क्लास वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ उसका काम क्या है, नहीं नहीं पता है तो कैसे होगा, बस लिख लेके तो नहीं होगा, क्योंकि उसका काम पहले पता करना पड़ेगा, इसका काम ये है तो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट एफ लिखते हैं, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड अप करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। पर अगर हम वहाँ पे कुछ ब्रेसेस को छोड़ देंगे या फिर वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को छोड़ देंगे, कुछ भी चीज़ों को छोड़ देंगे, कि सोचो कि प्रिंट एल लिख दिया, बस बस प्रिंट एल लिख दिया और बस और कुछ नहीं लिखा, तो वहाँ पे एरर आएगा, वो एरर की बात है। पर वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस जगह पे कि जिस चीज़ के ऊपर काम करें, जिस स्पेसिफाइड चीज़ के ऊपर हम काम करें, जिस स्पेसिफाइड चीज़ के ऊपर हम बात करें, और जिस चीज़ के ऊपर हमें अपना काम चाहिए और अपना प्रोग्राम को रन करना चाहिए, उस चीज़ों का वैल्यू क्या होता है और उस चीज़ों का यूजेस प्रोग्राम में क्या होता है, उस चीज़ों का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ों को क्लियर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर आउट होगी तभी जाकर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने प्रोग्राम को, और उसके थ्रू हम अपने लॉजिक को बिल्ड करके, अपने लॉजिक को उस पर इम्प्लीमेंट करके अपना आउटपुट को पा सकते हैं जल्दी से जल्दी प्रोग्राम के थ्रू। देन हाउ एक्सेस द पैकेजेस, अभी पैकेजेस को इंपोर्ट तो कर लिया, अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लाइक बुला तो लिया, अभी वो काम कैसे करेगा। जैसे हमको अपना एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चीज़ें, मटेरियल पहले लाना पड़ेगा, फिर मटेरियल अभी कौन घर बनाएगा उसको बुलाना, पहले उसको बुलाना पड़ता है कि घर घर कौन बोला, मतलब घर को, अगर कोई घर हम मतलब कुछ चीज़ों को हम बिल्ड कर रहे हैं तो उस चीज़ को बनाएगा कौन, कोई चाहिए ना, तो उसको पहले बुलाना पड़ेगा, उससे फिर लिस्ट लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आना है, फिर उसको लाना पड़ेगा, लाने के बाद उसको मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करके उसको सही फॉर्म में, कौन से फॉर्म कहाँ पे कितना लगेगा, उसी मेजरमेंट के थ्रू उसको बिल्ड करते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, और बाद में आंसर अगर सही रहा तो घर अच्छा है, गलत आया तो वैसे ही खराब आएगा। तो आज लाइक दैट वो उस फेज को अगर प्रोग्राम के थ्रू अगर लाना है कि किसी फाइल को लाना है, लाने के बाद उसको वहां पे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद उसको कैसे कहाँ पे कौन सा वाला प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोग्राम एट व्हाट पॉइंट, अबाउट व्हाट पॉइंट, कहाँ पे कौन सा वाला काम हो रहा है और कौन सा अच्छे से हो रहा है, इस स्पेसिफायर के बदले कौन से अलग चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरा काम आसान हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि सीमेंट 10 प्रकार के होते हैं, कौन सा वाला सीमेंट में अपना अच्छा होगा, या फिर अपने बजट के अनुसार कौन सा सीमेंट अच्छा होगा अभी अपने लिए। तो ऐसे ही अपने चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे कि कौन से वाले प्रोग्राम में कौन से वाले को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे बोलते हैं कि मेजरमेंट लेते हैं, कौन से वाले कहाँ पे कितना कितना लिखना है, क्या क्या करना है, वहाँ पे लिख के देते हैं कि कितना मेजरमेंट, वहाँ पे वैसे ही कि अभी स्पेसिफाई जो भी थे उसको डिक्लेयर कर लिया, सब कुछ लिख लिया, अभी उसके अंदर प्रोग्राम लिखना क्या है, हमको चाहिए क्या, वो चीज़ों को उसके अंदर डिफाइन करेंगे। फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे कि अभी प्लान तो बना लिया, दिमाग में प्लान रेडी, अभी लिखना स्टार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी लिखने के बाद आउटपुट क्या आया वहां पे कि घर कैसा बना, अच्छा बना बुरा बना, फिर वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम ठीक होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, बात खत्म। फिर अभी चलते हैं अपने इस पॉइंट पे, these are three ways of access of packages: import dot package, import package dot class name, और fully qualified name, right।
if you use the package, the all the classes or interfaces are the package will be accessible but not सब packages. यहाँ पे packages एग्जीक्यूट हो जाएंगी और क्लासेस एग्जीक्यूट हो गए बट सब क्लासेस नहीं होंगे. हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा कि क्या पैकेजेस उसके नीचे सब सब पैकेजेस उसके नीचे और सब पैकेजेस होते हैं. So in import statement we use the classes as the interfaces and the packages specified to the current packages, right? ये उसका प्रोग्राम है. आप लोग इसे रन करिए, ठीक है. मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. यहाँ पे पैकेजेस यहाँ पे लिखा है, देन पब्लिक क्लास डिफाइन किया गया अपने आप प्रोग्राम. फिर सेव एट बी, क्योंकि ए में यहाँ पे अपना पैकेज लिख दिया, अभी उसको बी पे भी तो सेव करना है, राइट. ए को सेव करेंगे, बी को सेव करेंगे, फिर बी में यहाँ पे पैकेजेस माई पैकेजेस इम्पोर्ट पैक और क्लास बी, राइट. उसको क्लास बी देन जेबीएम स्ट्रिंग ऑर्ग्स देन ऑब्जेक्ट a equals to new a object then mcg then ofi the hull, right. इसको आप रन करके देखिए, एरर आएगा तो बताना, ठीक है. we import the that is the second one, we import the package, the classes name only declare the class if the package will be accessible. अगर वो accessible होता है, in that case it was working, otherwise it was not working at all, right. Then the third one is the if it was using the fully qualified name at one declare classes at the packages will be accessible. Now there is no need of import but need about the fully qualified name of everything, sorry, every time when we accessing the classes of interfaces. It is generally used to two packages. इसमें दो packages का use होता है, class name और util java and the java dot package certain date class. ये दो packages का use मिश्रण से बनता है. So yeah, these are the two packages. Then after that adding a classes to a packages. Consider a following packages, package p1 then public class a then the body of a as like that. मैंने अभी जो बोला था, the we want to add an another pack class, right. यहाँ पे एक क्लास एक पैकेजेस लिख दिया, उसका बॉडी लिख दिया, उसको क्लास को भी डिफाइन किया, वहाँ पे एक और ऐड करना है. सो डिफाइन दैट क्लासेस एंड मेक इट पब्लिक, राइट. उसको पब्लिक करके डिफाइन करना है. प्लेस the place of packages of statement is the package p1 public class b about the body, राइट. अगेन यहाँ पे एक पैकेज को डिफाइन किया, पब्लिक क्लास को डिफाइन किया, देन द बॉडी वाज वर्किंग हियर. सेम थिंग वाज हियर, पैकेजेस p1 देन क्लासेस b, उस वहाँ पे बॉडी को डिफाइन किया, वहाँ पे ऐड किया. सो स्टेटमेंट 3 द स्टोर एज द b java dot under file directory, the complete it and it will be create the b classes of file and the places the directory p1. Note, we can also add the non-profit classes to the packages using the same produce of remember that the since Java source files can have only one classes declare the public, we want to put we are more public classes together in Java files. Okay, if we want to create a package with multiple public classes in it, we may follow the steps of decided the name by the packages to create the sub directory with this name where the main source files are stored. Create the classes that are be places with the packages where the courses files are declared to the packages statements. Package then package name. At the top of the each sources, switch the subdirectory created as the earlier and the compile with the source code source file when completed with the packages to contain the classes files all source files. Then here is the diagram, the table of access protection, right. ये उसका डायग्राम है. द हाइडिंग ए क्लासेस, अभी कुछ समय पहले हमने बात की हाइडिंग क्लासेस के बारे में. when import a packages using star of all public classes of imported, how we may refer to not import the certain classes, we may like to hide these classes from accessing from outside of packages. Such classes should be declared as not public, right. Here is the note, such classes should be declared as not public. Here is the public classes, body of x then body of y, not public I as heading. It is declared as public, it will be available outside but the public class is hidden, it was hidden here. यहाँ पे hid हो पे रुक गया, यहाँ पे hidden हो पे. So
in the static import. It is the another language, the feature of using which we can access the static members of the directory without the class's name of or any object. For example, always use the squad method of math classes of using math.squad. But by using the import, we can classes squad easily. The syntax inputs static package name, sub package class name as the classes of name. Then the program is written here. आप इस प्रोग्राम को अभी क्या करना हो ना बेटा, प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट करो अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और इसको देखो क्या आ रहा है, क्या आंसर क्या आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे निकल के आ रहा है और यहाँ पे छोटा छोटा है, दोनों दोनों छोटे छोटे हैं। आप यहाँ पे रन करो, रन करके आंसर क्या आ रहा है आप देखो। तो आप अगर रन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको बस छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को रन करके देख लो। हम लोग इस चीज़ के ऊपर बाद में भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के ऊपर। लास्ट 2-3 लेक्चर है, अभी ज़्यादा नहीं बचे, 2-3 बचे, वहाँ पे बात करेंगे। सो अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एलिमिनेटेस ऑफ रेसिडेंसी, लेस कोडिंग आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे एडवांटेजेस यह है कि एलिमिनेट्स द रेसिडेंसी, एलिमिनेट कर देता है लेस कोडिंग। यहाँ पे बहुत कम कोडिंग। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे चीज़ों का हमने बात की और काम किया, वहाँ पे कितना लंबा लंबा चल रहा था कोडिंग का, बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े चल रहे थे। पर यहाँ पे कितने 2-3 लाइन में अच्छे से खत्म हो रहे हैं वो चीज़ें। डिसएडवांटेजेस, मेक प्रोग्राम इज अनरीडेबल एंड अनमेंटेनेबल, राइट। वो प्रोग्राम को अनरीडेबल और अनमेंटेनेबल बना देता है। सो अपना पैकेजेस का ऊपर जितना भी था, अपना पैकेजेस अभी यहाँ पे गाइस खत्म होता है। व्हाट इज पैकेजेस, पैकेजेस कितने भाग में डिवाइडेड है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पैकेजेस, हम पैकेजेस को इंपोर्ट कैसे करें, उनको डिफाइन कैसे करें, और उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि प्रोग्राम को कैसे रन करना है, पर वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने बातें नहीं की। हम लोग कहाँ पे बातें कर रहे थे, हम लोग नोट्स के अंदर बातें कर रहे थे, जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है गाइस, तो आज अपना पैकेज का पूरा पूरा का पूरा थ्योरी कवर हो चुका है, अपना पैकेज कंप्लीट हो चुका है प्रॉपरली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप